الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ سب جمع ہیں. گزشتہ سال بھی یہیں پر ہم سب جمع تھے. پروردگار عالم اپنے محبوب اور محبوبوں کے محبوب ولیوں سے اعلیٰ نبوت اور صدیقیت کے بعد صالحین سے اوپر حسین اعظم کے تذکرے میں ہم سب جمع ہیں. برس قرآنی حسین انعام یافتہ بندے ہیں اور یہ انعام ہمارا اور آپ کا دیا ہوا نہیں، اللہ پاک کا دیا ہوا ہے. اللہ پاک نے اپنا خاص انعام نبیوں کے لیے، صدیقوں کے لیے اور شہداء کے لیے اور صالحین کے لیے مخصوص فرمایا ہے. اس قرآنی سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کے تحت آٹومیٹکلی ذہن میں یہ بات طے ہو گئی کہ حسین انعام یافتہ بندے ہیں. قرآن پاک کی روشنی میں جب حسین انعام یافتہ بنتے ہیں تو ان کا تذکرہ کر کے ہمیں سیاح یا کوئی برائی چیز یا بری چیز نہیں مل سکتی. یہ اللہ کے انعام سے بہراور ہے تو ہمیں بھی اللہ پاک کچھ نہ کچھ ضرور انعام عطا فرمائے. وہ چاہتا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے قرآن اتارا ہے اس مقصد کو امت سمجھے، خلق سمجھے. 6666 آیت کریمہ مشہور عرف کے مطابق، کیونکہ اللہ پاک کے کلام کی کوانٹیٹی نہیں کر سکتی. اس کی بات میں بات ہے، ذات اس کی بے حد ہے، بات بھی بے حد ہوگی، لیکن اس کی عرف اور مشہور کا جملہ میں نے کہا. اللہ پاک نے اپنے کلام میں ہماری گنتی کے مطابق 6666 آیتیں اتاری، لیکن ان میں مسائل صرف 500 آیتوں نے بتائی. احکام اور مسائل 500 آیتوں سے نکلے ہیں. 500 آیتیں ایسی ہیں جن سے احکام اور مسائل نکلے ہیں. 6166 آیتیں آخر کیا ہے؟ یہی ہے اللہ پاک اپنے محبوبوں کا تذکرہ فرماتا ہے. اور ذکر خدا جب اپنے محبوبوں کا اپنی زبان سے اللہ ذکر کرے تو اب خلق کو یہ زیر نہیں دیتا کہ جو خدا اپنی زبان سے اپنے محبوب کا تذکرہ کرے اسے وہ ترک کر دے. اور وہ بھی کلام الہی میں ذکر کی میجارٹی ہے. احکام و مسائل تو 500 آیتیں اور 6166 آیتیں جو صرف محبوبوں کا تذکرہ حسن جمیل خوبصورتی کے ساتھ اور محبوبوں کا رد ہے وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ ہے. قرآن میں حامان کا بھی تذکرہ ہے، فرعون کا بھی تذکرہ ہے، ابلیس کا بھی تذکرہ ہے، لیکن ان تمام کے تذکرے میں کہیں لعنت اللہ علیہ کا تذکرہ، کہیں مذمت کا پہلو ہے. لیکن قرآن میں آپ کے حسین کا بھی تذکرہ ہے، کہیں ان کی مقدس لب کا تذکرہ، ان کی ادائے قدم
सियाम का तज़किरा, उनकी अदाए रोजे का तज़किरा, यहाँ तक कि उनकी अदाए बीमारी का तज़किरा भी है कि वो बीमार पड़े तो क्या किया जाए, बीमार पड़े तो क्या किया जाए, सोल्यूशन का तज़किरा है। जो हज़रत हसनैन करीमैन के लिए बीमारी, जब वो बीमार पड़े तो बाप और माँ अली और फातिमा और कनीस मिर्ज़ा ने जो रोजे रखे थे हमने बता दिए हैं आपको, इन अदाओं का भी तज़किरा है। तो बीमारी से क्या शिफा, कैसे शिफा, किस तरह शिफा, फिर शिफा मिल गई तो उसका तज़किरा है। फिर उस तज़किरे के बाद जो इन लोगों ने अल्लाह के लिए एहसान को माने उसका तज़किरा है। क्या कहना, हसनैन से रिलेटेड हर अदा को अल्लाह ने खूबसूरती से पेश किया है। इस बात की वाज़ेह दलील है, 1400 साल के बाद गुजरने वालों, जिंदगी काटने वालों, हुसैन के तज़किरे को ये टेम्पररी या वक्ती या अपनी ज़हनी या टाइम पासली तज़किरा मत समझना, ये तौहीद का तज़किरा है, ये खुदा का तज़किरा है। और खुदा जब किसी को हुस्न के साथ तज़किरा का रूप देता है तो वो दायमियत का जामा पहनती है, वो हमेशगी का जामा पहनती है, वो असलियत का जामा पहनती है। खुदा का कलाम असली है, खुदा का कलाम कदीम है, वो न मिटने वाला कलाम है। तो जब हुसैन का तज़किरा खुदा ने किया है तो अब इसका तज़किरा मिट नहीं सकता है, इसका तज़किरा खत्म नहीं हो सकता है। इसलिए अब हम खत्म होने वाली मखलूक, ना मिटने वाले तज़किरे को कर सआदतमंद हो सकते हैं। हम वहाँ पर हक अदा करने की बात नहीं कर सकते, हम वहाँ पर इहाता करने की बात नहीं कर सकते हैं। चुनांचे उस किताब में आप पढ़ेंगे, एक लाइन में मैंने लिखा है कि मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि मैंने अहले बैत की तारीफ करके हक अदा नहीं किया है, बल्कि मैं इस बात का यकीन करता हूँ, एतराफ़ करता हूँ कि इनकी तारीफ करके सादत दारैन की राह ली है मैंने। दोनों जहान के रास्ते और दोनों जहान आखिरत और दुनिया में जो सआदतमंदी हासिल होने के जो पहलू हैं, बस वो रास्ता मैंने चुना है, वो रास्ता मुंतखब किया है। हक अदा नहीं कर सकते। मुसलमानों, चंद मिनट के लिए जो बैठे हो, खुदा की कसम फराइज़ और वाजिबात में जो कमियां तुम्हें मालूम होती हैं, ये तमाम कमियों की भरपाई का नाम यही सब महफिल है, यही सब जिक्र है कि जब मैदान महशर कायम होगा और आपके फराइज़ और वाजिबात छूटे होंगे, जो जो अल्लाह ने आप पर फर्ज किए वो छूटे होंगे, और आपने बगावत ना की होगी रसूल से, आपने बगावत और गुस्ताखी ना की होगी तौहीद और सुन्नत से, तो याद रखना कमियां अमल में वाक़ई हुई होगी। तो जब जहन्नम के फरिश्ते ले जाने की बात करेंगे तो अल्लाह पाक ऑर्डर करेगा कि तुम फराइज़ और वाजिबात की बुनियाद पर जहन्नम का फैसला मत करो। देखो जिंदगियों में कुछ एक्स्ट्रा बातें भी होंगी, कुछ एक्स्ट्रा पहलू भी होंगे, कुछ नवाफिल भी होंगे, कुछ मुस्तहब्बात भी होंगे। हम फर्ज और वाजिब नहीं कह रहे हैं इस महफिल को, लेकिन सुनो, यही वो महफिल है जो फराइज़ और वाजिबात की भरपाई के लिए उभर करके आएगी, यही वो जिक्र है जो फराइज़ और वाजिबात की तकमील के लिए उभर करके आएगी। चुनांचे अल्लाह पाक से वो फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह, ये फराइज़ और वाजिबात की तकमील नहीं, नवाफिल में ये है कि ये जिक्र हुसैन सुना करता था, अहले बैत का तज़किरा सुना करता था, महफिल में पाबंदी से बैठता था, हुस्न के साथ सुना करता था, पॉजिटिव नजरिया लेकर सुना करता था। परवरदिगार आलम कहेगा जहाँ पर कमी है उसको वहाँ पर भर दो, जहाँ पर कमी है उसको वहाँ पर भर दो। तो फराइज़ और वाजिबात की भरपाई का नाम ये सब महफिलें हैं, नवाफिल हैं, मुस्तहब्बात हैं। इसे आप इजी मत लो। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे मैं खड़ा कर दूं और वो कह दे कि मैं हाल इनाज जब से बालिग हुआ हूँ एक वक्त की भी नमाज नहीं छूटी है। कोई ऐसा इंसान है? अगर वो ऐसा इंसान होता तो वो यहाँ हमारी महफिल में नहीं रहता। उसकी महफिल जंगल हुआ करती है, उसकी महफिल खलवतें हुआ करती है, उनकी महफिल तन्हाइयाँ हुआ करती है। हम सबों के पास हम गुनहगार हैं, इसलिए प्यारे हमारा गुनहगार होना गारंटेड है, याद रखना। और हमारी बख्शिश में बस सिर्फ और सिर्फ अदायाने महबूबाने इलाह अगर अटच ना हो और टच ना हो तो हमारी बख्शिश गारंटेड नहीं, गुनहगार होना गारंटेड है। हम उम्मीद रखते हैं मौला हमें बख्श दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, मौला हमें दुनिया में भी नेकी अता फरमा, आखिरत में भी नेकी अता फरमा, और जहन्नम के अजाब से बचा ले। ये क्यों कहते हो? इसलिए कहते हो गुनहगार होना गारंटेड है। अल्लाह के
सूरह नज्म को उठाइए, रब फरमाता है मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहीयुन यूहा। आप जब बोलना चाहते हैं तो बोलने से पहले मैंने उस बोली को वही का रूप दे दिया है। आपकी बोली की हिफाजत मैंने कर ली है। ज़ादाए मुस्तफ़ा का अंदाज लगाइए, आप जो बोलते हैं वो बोली की हिफाजत जब रब्बुल आलमीन ने कर लिया है। अदाए मुस्तफ़ा की हिफाजत कितनी की होगी, इस तरह से आप अंदाजा लगाइए। फिर भी वो रसूल कह रहे हैं मौला हमें बख्श दे, हमें बख्श दे। याद रखना वो हमें बख्श देना नहीं है, वो हमें में जो हम लोग हैं वो बख्श दे हैं। ए अल्लाह मुझे तो तूने अपने दायरे इस्मत में लिया है, दायरे हिफाजत में लिया है, कंटिन्यूटी के साथ मेरी हिफाजत का वादा ले लिया है। मैं क्या गलत करता, अगर मैं गलत करूँ तो उम्मत कहाँ जाए। इसलिए मैं तो मगफूर हूँ, मैं तो मासूम हूँ, मेरी तो बख्शिश और मेरी इस्मत गारंटेड है। लेकिन मैं फिर भी तुझसे मांग रहा हूँ, तू मेरी मशीयत को समझता है, तू मेरे इरादा को समझता है, तू मेरी इच्छा को समझता है। इसको और अच्छे से मुबर्रन कर दो। सूरह बड़ी अच्छी बात है, इसीलिए मैंने आयत की तिलावत की है। मेरे इरादा को समझता है, मेरी ख्वाहिश को समझता है, और इसीलिए तो तूने आयत उतारा ना वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। करीब हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह पाक दे हुए भी अगर कहेंगे कि मैं राजी हूँ तो बंदा बहुत बड़ी सआदत है, लेकिन मौला कह रहा देकर राजी करूंगा। कमाल है, जुमले पे गौर कीजिए आप। अगर मैं डायरेक्ट आपको कह दूं मैं तुझसे राजी हूँ तो ये बहुत बड़ी सआदत है, लेकिन दे भी और कहे मैं राजी करना चाहता हूँ, कमाल है, ये तो बहुत बड़ी बात है। दे कर कह रहा है राजी करूँ। अल्लाह अल्लाह इस तसव्वुर को आप महसूस कीजिए। जब आयत करीमा उतरी तफसीर इब्ने कसीर वगैरह का मुलाहाजा कीजिए। तफसीर इब्ने कसीर में है कि जब ये आयत उतरी तो नबी का जुमला सुनिए। रब ने कहा हम राजी करेंगे, मुस्तफा ने कहा हम राजी नहीं होंगे। रब ने कहा हम राजी करेंगे, मुस्तफा ने कहा राजी नहीं होंगे। रब ने कहा क्यों मेरे हबीब? कहा इसलिए कि मेरा गुनहगार जहन्नम में हो और मैं राजी होकर बैठा रहूं। नहीं, एक भी मेरा गुनहगार उम्मती जहन्नम में होगा, मैं राजी नहीं होऊंगा। महसूस करो उम्मतियों, ये सहाबा के लिए मुस्तफा ने नहीं कहा होगा, इसलिए कि सहाबा तो रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु के जलवे में है। सहाबा ताबईन तो रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु के जलवे में है। ये सब कौन है? क्या गौस के लिए कहा होगा, कुतुब अबदाल के लिए कहा होगा, ये यूसुफैन और शरफुद्दीन के लिए कहा होगा? नहीं, ये हमारे लिए कहा है मुस्तफा ने, ये हम गुनहगारों के लिए कहा है। मौला मेरा एक भी गुनहगार अगर जहन्नम में होगा तो मैं राजी नहीं होगा। तो रब ने पहले कहा था राजी करूंगा, ये बाद में अगर कहा होता ना कि राजी कर रहा हूँ, राजी कर दे मौला, मुझे राजी कर दे मौला, मेरी रजा चाहिए मौला, मुझे राजी कर दे मौला। रब के रसूल अगर पहल किए होते तो एक पहलू था, लेकिन पहल तो रब ने किया है कि मैं राजी करके रहूंगा। तो अब तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं, कोई एतराज का पहलू है ही नहीं, अब सबकी गुंजाइश ही नहीं है। रब ने कहा हबीब बोल क्या चाहिए? परवरदिगार आलम के रसूल ने कहा अगर एक भी जहन्नम में है तो नहीं, खुदा की कसम हम थोड़ा सी मंजर लाइए, अब मंजर लाइए मैदान महशर का, और मंजर लाने के बाद तसव्वुर को देखिए। मेरा नबी जब सब सजदे में सर गिराएगा तो उस वक्त परवरदिगार आलम, आपने सुना है कि हिसाब और किताब की वो महफिल है? नहीं, मुस्तफा की रजा की वो महफिल है, खुशनुदी मुस्तफा के ऐलान की वो महफिल है, रज़ाए मुस्तफा के इजहार की वो महफिल है। आप मैदान महशर उन्वान तो बांध सकते हो, लेकिन उस उन्वान में रज़ाए मुस्तफा देखना होगा। रज़ाए मुस्तफा, नबी जब चेहरा को गिराते हैं सजदे में तो हिसाब किताब लेने से पहले हम लोग डर रहे थे कि गए काम से, अब तो हिसाब लेने वाला है, लेकिन अचानक मौला कहता है मेरा हबीब कहाँ है, मेरा हबीब कहाँ है? हिसाब किताब की कुर्सी पर अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल इजलाल फरमाया हुआ है, मगर मौला कहता मेरा हबीब कहाँ है? खुद से वो देखता है, अपनी शान के मुताबिक देखता है कि मेरा हबीब सर सजदे में गिराया हुआ है। इससे पहले कि किसी और से कहा जाता महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, कोई बीच में नहीं आना। रब इरशाद फरमाता है इरफा सका या मोहम्मद, ए मेरे प्यारे अपने सर को उठा लीजिए, ये मकाम लेने का है, ये मकाम परेशान होने का नहीं है। अपने सर को उठाइए, सर मांगिए, तो अता हम आप ही को अता करने के लिए है, हम आप ही को अता करने के लिए है। झंझट की दुनिया में हमने इसका ऐलान कर दिया है, तकलीफ की दुनिया में हमने इसका ऐलान कर दिया है, दारुल अमल में हमने इसका ऐलान कर दिया है। यहाँ तो जज़ा की दुनिया है, ये तो देने ही की दुनिया है, या तो सजा देंगे या जज़ा देंगे। मौला सर को उठाइए, मेरे प्यारे सर को उठाइए। नबी आज़म को कहा गया है सर को सिर्फ उठाने नहीं, मांगिए जो मांगना है। और इश्फा तो शफ़ा, जिनकी शफाअत करनी है आप शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत हम कबूल करेंगे, रिक्वेस्ट हम कबूल करेंगे। ये जब जुमला कहा बातें खिल गई, लबे मुस्तफ़ा मुस्कुरा गए, चेहरे मुस्तफ़ा
ऐसे नहीं हैं। तवज्जो दीजिएगा, परवरदिगार आलम ने जब कहा जिसकी शफाअत करनी है कीजिए, तो खुदा की कसम उसके बाद सारी कतारें लगी हुई थी, सहाबा किराम की कतारें हैं, तमाम मुत्तकियों की कतारें हैं। ये तमाम कतारों को परवरदिगार आलम के रसूल सबको एक तरह एक लम्हा भी नहीं देख रहे हैं, उन कतारों को देख रहे हैं जिसमें हम जैसे खड़े हैं। खुदा की कसम हम गुनहगार की कतारों पर मुस्तफा नजर दौड़ाते हैं और गुनहगारों की कतारों पर नजर दौड़ाने के बाद आका जाते हैं और एक एक करके परवरदिगार आलम से कहते हैं ये मेरा है, इनको बख्श दे, ये मेरा है, इनको बख्श दे, ये मेरा है, इनको बख्श दे। ये गुनहगारों की जब कतारें लगी हुई होती तो सहाबा किराम मुत्तकियों की जमात देख करके अश करती है, रश करती है और कहती है या अल्लाह आज तो मेरी तरफ मेरा हबीब देख ही नहीं रहा है। जिनकी नजरों के लिए हम सुबह शाम इकट्ठा कर दिए थे, जिनकी नजर अपनी तरफ अट्रैक्शन के लिए हमने सुबह शाम इकट्ठा कर दिया था, आज कोई देख भी नहीं रहा है। तो सहाबा किराम या मुत्तकियों की जमात में से कुछ चुनिंदा अफराद आकर के मीटिंग करेंगे, मशवरा करेंगे कि अरे नजरे मुस्तफा लेने के लिए क्या करना चाहिए। आज तो सिर्फ नजरे मुस्तफा गुनहगारों की तरफ है। जवाब मिलता है कि ऐसा करो, चलो गुनहगारों के साथ में जाते हैं, एक गुनाह कर्जा ले लेते हैं ताकि गारंटी हो जाए कि हम भी गुनहगार हैं, गारंटी हो जाए कि हम भी गुनहगार हैं। अल्लाह अल्लाह और कीजिए कि जब वो जाते हैं और कहते हैं कि जब जैसे जाना चाहते हैं तो नबी कहते हैं चलो चलो तुम्हारा ये नहीं है, ये तुम्हारी कतार नहीं है। कहा या रसूलल्लाह थोड़ी देर के लिए कर दीजिए। सारे गुनहगार के पास जाकर कहते हैं गुनहगारो मुझे एक दो कर्जा दे दो अपना गुनाह, ताकि मैं तेरी सब में आ सकूं और नजरे मुस्तफा पा सकूं, नजरे मुस्तफा पा सकूं। अल्लाह अल्लाह इमाम अहले सुन्नत कहते हैं वो क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। परहेज़गार लोग गुनाह को कर्ज ले रहे हैं। तवज्जो दीजिएगा, जब ले लिए नजरे मुस्तफा के लिए हबीब को कहा गया था जिनकी आप बख्शिश कीजिए आपकी बख्शिश और आपकी शफाअत को कबूल की जाएगी, ये जुमला था, कोई कंडीशन नहीं। यहाँ तक कि जब ये बात हो गई और जिनके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका था, मेरा आका अब जहन्नम में जा रहा है, माअल्लाह। तवज्जो दीजिएगा और समझिएगा, जहन्नम में जा रहा है हबीब, आखिरजू निकाल लो उनको, फी मन काना फी क़ल्बिही मिन मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन ईमान मिन खर्दलिन मिन ईमान। हबीब जिनके दिल में आपकी मोहब्बत की थोड़ी सी भी खुशबू हो उनको निकाल लो, और वो गुनाहों की वजह से अगर जहन्नम में जलने का सज़ावार है तो उनको निकाल लो। मेरा हबीब जाएगा और उनको निकालेगा, अब उनको निकालेगा। प्यारे महसूस करो, रज़ा
यजीद को ये नहीं मालूम था, वो तो बिल्कुल करीब ज़माने मुस्तफ़ा का था ना। आज तो हम 1400 बरस के बाद आज हम किताबों के जरिए से ये मालूम कर चुके हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम है। एक मर्तबा हज़रत उम्मे सलमा के सामने पूरे गर्दो गुबार अपने आप के बाल गर्दो गुबार गर्द आलूद हैं, जरा तवज्जो दे रहे हैं, आपके बाल बड़ी मशहूर रिवायत है। तो क्या पूछा, या रसूल अल्लाह आपके बाल गर्दो गुबार क्यों है, आपके बाल में ये क्यों है? तो आका ने क्या कहा था, शहीद तो कत्ल हुसैन आनिफन, मैं हुसैन के करबला से जहां हुसैन शहीद किया जाएगा वहां से हाजिर होकर आ रहा। कब कहा था मुस्तफा ने? करबला का वाकया, यजीद और हुसैन का जो ताल्लुक है और इन दोनों की जो जंग का मसला है, ये तो 60 साल के बाद का मसला है। ये क्या अरबी का नहीं थे, आप तो उर्दू का हो, उर्दू का तो 1400 बरस के बाद ये बात मालूम है, ये बात मालूम है। वो तो पहले वाले हैं, उनको तो और मालूम होना चाहिए था। तो जब मुस्तफा ने कह दिया, और सुनो, यजीद को बाप ने खिलाफत देते वक्त ये वसीयत भी किया था, बेटा हसनैन पर प्रेशर मत डालना, हुसैन पर प्रेशर मत डालना, हुसैन को फॉलो करना, खिलाफत अगरचे तेरे पास है लेकिन सही हकदार वो है, उनकी इत्तिबा करना। ये सब ऐलान के बावजूद कैसा महरूम किस्मत था, कैसा फसादी फिक्र था, वो कैसा फसादी फिक्र वाला था। आप जरा महसूस कीजिए, सब कुछ मालूम है, कुरान ने ऐलान कर दिया अजमत का, हदीस ने ऐलान कर दिया अजमत का, प्रैक्टिकल ऑफ नबी का प्रैक्टिकल भी हुसैन की अजमत का ऐलान कर चुका है, अली की अजमत का ऐलान कर चुका है, कुरान की आयतें ऐलान कर चुकी है। सूरह इंसान के आयत नंबर 7 से 22 तक देखिए, ये अजमत अली, अजमत फातिमा, अजमत फिज़्ज़ा, अजमत हसन, अजमत हुसैन, ये सब का ऐलान कर चुकी है। क्या वो कुरान नहीं पढ़ने आता था? खिलाफत किसको कहते हैं, खलीफा किसको कहते हैं? मुसलमानों का गवर्नर बनना, मुसलमानों की अमीरी करना, मुसलमानों के मसाइल को हल करना। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम तो कुरान है, बगैर कुरान को जाने खलीफा बन ही नहीं सकता है। तो जब कुरान मालूम था और कुरान में हसनैन की अजमत थी, तो फिर अजमत के खिलाफ क्यों अपने कदम को बढ़ाया उसने? यही से पॉइंट मिल गया कि कुरान सबके लिए हिदायत नहीं है, सबके लिए हिदायत नहीं है। पढ़ना आसान है लेकिन कुरान उसी के लिए हिदायत है जो तसव्वुर हुसैन में पढ़े, जो हुस्न हुसैन में पढ़े, खूबसूरती अहले बैत में पढ़े। इसीलिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, सुनो, मैंने तुम्हारे अंदर दो भारी भरकम दो चीज छोड़ने का अहद कर लिया है, मैं तुम्हें दो भारी भरकम चीज छोड़कर जा रहा। आप सुने हैं, और वो भारी भरकम चीज क्या है? आप जरा सीने पर हाथ करके बताइए, रसूल आज़म पर जो ईमान लाए उनको क्या कहते हैं? सहाबे किराम कहते हैं। और जो रसूल पाक कानून दिए उसको क्या कहते हैं? कुरान पाक कहते हैं। तो हकीकत अगर देखें, गौर करें, तो छोड़ रहे हैं किसको? कुरान और सहाबा को छोड़ रहे हैं। इसीलिए मैं पहले ही डॉट्स क्लियर कर दूं कि हजरत हसन और हुसैन जिस तरह मतलब नबी के नवासे हैं, अहले बैत हैं, उसी तरह सहाबी रसूल भी हैं। क्योंकि ईमान की हालत में मेरे नाना मेरे आका को देखा, बच्चों दे रहे हैं, आका को देखा तो सहाबी रसूल है। तो हकीकत ये है कि मुस्तफा कुरान और सहाबा छोड़ रहे हैं, लेकिन आप उम्मती उसे कहते हैं जो फॉलो करे, डिस्कस न करे। नबी कह दे रहे हैं कि मैं ये छोड़ रहा हूं तो आपने मान लिया, बस आप डिस्कस नहीं कर रहे। या रसूल अल्लाह, हकीकत तो ये है कि आपने जो छोड़ा है वो कुरान है और सहाबी है। सहाबा को छोड़ा, ताबईन को भी आपने नहीं छोड़ा, ताबईन को सहाबा छोड़ेंगे, तबे ताबईन को ताबईन छोड़ेंगे। तो आपने जो छोड़ा है वो कुरान और सहाबा है। लेकिन आप फरमाते हैं इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम में दो भारी भरकम चीज छोड़े जा रहा हूं। और पहली चीज है किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, और दूसरी चीज है वइत्रती अहले बैती, और दूसरी चीज है मेरे अहले बैत। और अहले बैत सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 के हवाले से साफ खुल कर कह दो, अहले बैत की बुनियादी कड़ी अली, फातिमा, हसन और हुसैन है। अली, फातिमा और हसन और हुसैन है। नबी ने ये आयत के उतरने के बाद इन चारों को लेकर के इरशाद फरमाया, अर्ज किया था मौला की बारगाह में, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती फतहिरहुम ततहीरा, ए अल्लाह ये सब मेरे अहले बैत हैं, इनकी ततहीर फरमा, इनकी पाकी बयान फरमा। जिस आयत में उसने अल्लाह ने कहा था, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा, रब का ये इरादा हो चुका है कि ए लोगों सुनो, ए अहले बैत के घराने वालों सुनो, हम तुझे हर तरह से पाक कर दें, हर तरह से साफ कर दें, ज़ाहिरी और बातिनी से हर तरह से पाक साफ कर दें। ये वादा था तो नबी ने अहले बैत में इन चारों को लाकर ऐलान किया, ये मेरे अहले बैत हैं। और उसके बाद मुतालबा भी किया है आपसे कि हे लोगों सुनो, अहिब्बू अहले बैती लिहुब्बी, अगर तुम मेरी मोहब्बत का दम भरते हो तो उम्मत का तबका ऐसा भी है जो कहता है कि नबी से मोहब्बत
ایمان کا, کوئی وہاں پڑھے, لیکن نماز میں کسی کا اختلاف نہیں کہ واسطے اللہ کے. تو جس میں اختلاف نہیں ہے مولا وہ چیز کیا مانگے گا, وہ چیز کا مطالبہ کیا کرے گا. لیکن اہل بیت میں اختلاف ہے. رسول پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب جانتے ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو میرے بعد میرے اہل بیت سے میری محبت کی بنیاد پر محبت کرنا, میری محبت کی بنیاد پر محبت کرنا, یہ مطالبہ کیا ہے. اور نماز کے بارے میں جب فرمایا نماز پڑھتے رہنا, پڑھو گے تم آنکھیں میری ٹھنڈک ہوگی. مطالبہ نہیں کیا ہے کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر مطالبہ کروں تو واجب ہو جاتا ہے عمل کرنا, اور اگر مطالبہ نہ کروں تو امت تو آئی ہے, کبھی چھوٹ بھی سکتی ہے نماز, اور چھوٹتی ہے تو معاف کر لے گی. لیکن سنو اہل بیت کی محبت کا نبی نے مطالبہ کر کے ذہن دے دیا ہے کہ یہ مطالبہ مصطفیٰ کا ہے, اور مصطفیٰ کے مطالبے پر کھرا اترنا واجب ہے. اگر اہل بیت کی محبت میں ذرا سا بھی تم نے تنقیدی نگاہ, تنقیدی انگلی اٹھائی تو یہ مطالبہ مصطفیٰ پر انگلی ہے, یہ نبی کے مطالبہ پر انگلی ہے. احبو اہل بیتی لحبی, میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرنا, میرے حسن سے محبت کرنا, یہ آرڈر ہے مصطفیٰ کا. ہے کوئی ایسا امتی جو مصطفیٰ کے آرڈر کو فالو کیے بغیر کہتے میں امتی ہوں, وہ امتی ہی نہیں ہے. امتی کہتے ہی ہے اس کو جو نبی کو فالو کرے, جو نبی کی اتباع کرے. چنانچہ قرآن میں کہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی بھی اطاعت کرنا, رسول کی بھی اطاعت کرنا ہے. اور سنو وحی والی زبان نے بھی آپ کو کہہ دیا اہل بیت سے محبت کرنا ہے. ہاں پیارے, کبھی بھی ایسا جملہ ہرگز اپنا کہنا کہ ہاں اہل بیت سے محبت یہ ہے نماز پڑھو. کون کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو؟ بتائیے امت کا کون سا طبقہ ہے جو کہتا ہے نماز نہ پڑھو؟ جو کہتا ہے وہ امت کا طبقہ کیا وہ انسانیت میں داخل نہیں, انسانیت میں وہ داخل نہیں ہے. لیکن جس پر اعتراض ہے اس اعتراض کو دفاع کرو, یہ حسن اسلام ہے, یہ خوبصورتی اسلام ہے. آج آپ پر نماز کے حوالے سے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. جو چاہو, جیسے چاہو, جہاں چاہو, جس طرح چاہو پڑھو, کیونکہ تم واسطے اللہ کے پڑھتے ہو نا. جب واسطے اللہ کے پڑھتے ہو تو حساب تمہیں اللہ کو دینا ہے, حساب تمہیں اللہ کو دینا ہے. تم جیسے چاہو پڑھو, میں اس پر اعتراض نہیں کرتا, لیکن ناٹک مت کرنا. واسطے اللہ کے تم شروع ہی میں کہہ رہے ہو نویت ان اصلی للہ, واسطے اللہ کے, لیکن مصطفیٰ حسین سے جو محبت مانگ رہے ہیں وہ واسطے اللہ کے نہیں, وہ واسطے میرے, کیونکہ جانتے ہیں امتیوں تیری پہنچ اللہ نے مجھ تک رکھی ہے. جب مجھ تک پہنچو گے تب خدا تک پہنچو گے, تب خدا تک پہنچو گے. سورہ شورى آیت نمبر 59 اللہ سبحانہ 55 میں فرماتا ہے ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں سنو, کسی بشر کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ خدا سے بات کرے. بات کرنا ہو تو بشر کو حق ہے کہ مصطفیٰ خیر البشر سے بات کرے, مصطفیٰ کا رحمت سے بات کرے. تمہاری پہنچ نبی تک ہے تو نبی نے تم سے مطالبہ کر کے یہی ذہن دیا ہے کہ خبردار یہ محبت جو ہے نماز سے ریلیٹڈ نہیں. نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہو, تم ان کے اللہ کے قریب ہوتے ہو, سجدے میں رہتے ہو, سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو. وہ تو تصور میں نے دے ہی دیا. نماز اس طرح پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو, یہ نہ ہو سکے تو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے, بیچ میں خود کو نہیں لایا. لیکن محبت ایسے کرو جیسے مصطفیٰ کو کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہے, جیسے حبیب کو کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہے. یا رسول اللہ آپ کیسی محبت کیے ہیں, خدا کی قسم کیسی محبت کیے ہیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ مطالبہ محبت اہل بیت ہے آپ کا, بتائیے کیسے محبت کرنا, کیونکہ آپ نے کہا میری محبت کی خاطر محبت کرنا, یعنی میں نے کیسے کیا ہے وہ دیکھنا, میں نے کس طرح کیا ہے وہ دیکھنا. چنانچہ مصطفیٰ ہے ایک حدیث سے محسوس کرنا, نبی اعظم ہے, اہل بیت خصوصاً حضرت فاطمہ کے گھر سے قریب سے گزر رہے ہیں, گزرتے گزرتے حسن کے رونے کی آواز کان مصطفیٰ تک پہنچتی ہے. نبی اعظم گزرنا روک دیتے ہیں اور حضرت فاطمہ کے گھر جاتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں بیٹی میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے, بیٹی حسین کیوں رو رہا ہے, حسین کیوں رو رہا ہے. بیٹی کہتے ہیں ابو جان معلوم ہے آپ کو کتنے دن سے کھانا نہیں ہے اور کھانا پینا کی وجہ سے رو رہا ہے, گھر میں کھانے نہیں ہے, بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے. مصطفیٰ مسکرا کر کہتے ہیں بلاؤ بلاؤ بلاؤ. یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ رونے لگتے ہیں. ارے کائنات کا وہ مالک ہے, جنت کا وہ مالک ہے, حشر کا وہ مالک ہے, خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا ہے. توجہ دیجیے گا, مصطفیٰ جان رحمت بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتے ہیں حسین. دیکھتے ہی مصطفیٰ کو حسین سارا حسن آ گیا, ساری خوبصورتی آ گئی, رونا بند, اور کہتے ہیں پیارے آؤ آؤ آؤ, اور زبان مصطفیٰ نکال دیتے ہیں. آج ہم بھی
हो, मिट्टी को मुस्तफा की निस्बत हासिल हो जाए, कुरान में जगह मिल जाए। लोगों का तबका, लोगों का एक तबका हदीस रसूल का नाम आता है, ये हदीस रिजेक्ट है, ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस मौजू है। अरे जब मौजू कह रहे हो तो हदीस मत कहो, जब ज़ईफ कह रहे हो तो हदीस मत कहो। मेरा मुस्तफा पावरफुल है, उनकी हर हदीस पावरफुल है, उनकी हर हदीस ताकतवर है। दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो दीजिएगा, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया हुसैन की मोहब्बत नबी की मोहब्बत की तरह करना, ये उन्वान था। हुसैन से मोहब्बत नबी की मोहब्बत की तरह, अहले बैत से मोहब्बत नबी की मोहब्बत की बुनियाद पर। नमाज अक्से मोहब्बत हुसैन नहीं है, तवज्जो दीजिएगा, नमाज सिले मोहब्बत हुसैन नहीं है। अगर ये होता तो आप नोट करो, रसूल आज़म पर फरमाते कि हुसैन से हकीकी मोहब्बत ये है कि नमाज पढ़ना, हुसैन से हकीकी मोहब्बत ये है कि मेरी इत्तिबा करना, हज करना, लेकिन नहीं बस मोहब्बत करना। फरमा रहे मोहब्बत करना, मोहब्बत करना और कोई नहीं। नमाज के लिए अल्लाह का हुक्म है, नमाज पढ़ो मेरी आंखों को ठंडक पहुंचेगी, नमाज पढ़ो तुम्हें मौला हासिल होगा, लेकिन मुझे राजी करना चाहते हो और जो तेरा स्टेटस ऑफ उम्मत यही है, उम्मत का स्टेटस ही यही है कि वो कदम मुस्तफा तक पहुंचे बस। तो सुनो, अब उससे मोहब्बत करना। हुसैन को बुलाते हैं और जब बुलाने के बाद अपनी जबान को दे देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार, उंगली से क्यों नहीं आपने नदियाँ बहाई सहाबा के लिए, हुसैन के लिए भी बहा देना था, वो खाने पीने के लिए तो रो रहे हैं, उसकी भरपाई तो उसी से हो सकती थी ना, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं किया, ज़बान को चटवाया। जानते हो अभी आते आते एक बड़ा अजीम नुक्ता मिला है, तवज्जो दीजिएगा, आप बड़ी तवज्जो से और अट्रैक्शन से सुनिए। वो क्या है? नबी ने ज़बान क्यों चटवाया? तवज्जो दीजिएगा, आप जो भी बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं, हम जो भी बोलते हैं, आप जो भी बोलते हैं, इस बोली को नुत्क बोलते हैं अरबी में, नून ता काफ, क्या बोलते हैं? नुत्क। इसीलिए आप अगर मतलब साइंस पढ़े होंगे तो आपको हैवाने नातिक भी कहा गया है। आप अगर साइंस पढ़े हैं तो हैवाने नातिक क्यों कहा गया है? हैवान बोलते हैं हसास मुतहर्रिक बिल इरादा, यानी जिसके अंदर एहसास हो, जिसके अंदर हरकत करने की सलाहियत हो और जिसके अंदर इरादा की सलाहियत हो, इसलिए हैवान उसको बोलते हैं। और नातिक बोलते हैं बोलने वाला, तो यानी एहसास के साथ जो बोले, हरकत के साथ जो बोले, इरादा के साथ जो बोले। तवज्जो दीजिएगा, मैं जो जुमला देने जा रहा हूँ बड़ी मोहब्बत का जुमला है, और फलसफा मोहब्बत हुसैन समझ लीजिएगा और मुतालबा मोहब्बत मुस्तफा भी समझ लीजिएगा। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये आप तो उर्दू में तर्जुमा ये सुनते हैं कि हबीब आप जो बोलते हैं वो आप नहीं बोलते, वो अल्लाह की वही बोलते हैं। ये जुमला सुने हैं ना, तो उर्दू में बोलते हैं सुने हैं, तो उसके लिए कितनी अरबी आपको बताऊं। एक लफ्ज है कलाम, इसको भी बोलना बोलते, एक लफ्ज है कलमा, इसको भी बोलना बोलते, एक लफ्ज है तकल्लुम, इसको भी बोलना बोलते, एक लफ्ज है कौल, इसको भी बोलना बोलते। ये सब बोलना काल रसूलुल्लाह, रसूल ने इरशाद फरमाया, तकल्लम रसूलुल्लाह, रसूल ने हकीशान में काल रसूलुल्लाह, रसूल ने बोल, रसूल ने कहा, रसूल तकल्लम रसूलुल्लाह, रसूल ने बात की, नतका रसूलुल्लाह, रसूल ने नुत्क की। तो तीनों की अरबी अलग अलग है, लेकिन उर्दू में उसकी जो मीनिंग हो रही है वो एक ही हो रही है, यानी बोलना बोलना बोलना, तकल्लुम करना भी बोलना है, नुत्क करना भी बोलना है। लेकिन प्यारे समझो कि तकल्लुम करना ये वो बोली नहीं है जो नुत्क की बोली है, और नुत्क करना वो बोली नहीं है जो कौल की बोली है। अब जरा क्या नहीं है, मैं सबको छोड़कर सिर्फ नुत्क समझा दूं। नुत्क जो है कॉमन है, नुत्क जो है कॉमन है, क्योंकि आप भी हैवाने नातिक, आप भी हैवाने नातिक, जितने भी इंसान हैं सब हैवाने नातिक है। हम में और हैवान में इम्तियाज ये नुत्क है, नातिक है। तो जितने भी आदमी हैं सब नातिक है। तो आप जरा सोचिए कि ये कॉमन है, ये मुश्ताक है, ईजी है, आम है, कलाम बड़ा आला है, कौल बड़ा आला है। तो आला और आला को अभी यहाँ पर रखिए, नबी ने कौल भी किया, नबी ने कलाम भी किया, ये दोनों को रखिए। जो नुत्क से आला है, आपकी बोली को नुत्क कहा जाता है, आपके स्टेटस को नातिक कहा जाता है। लेकिन सुनो, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सूरह अन-नज्म आयत नंबर 3 अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ला
دیجیے گا، حسن بھی ناطق تھے، توجہ دیجیے گا، اور دیتے 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 اب آ جائیے، انگلی سے کیوں نہیں بہایا، ٹھوکریں مار کر کیوں نہیں بہایا، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گردے منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا، جبرائیل نے ٹھوکر مارا آب زمزم ایک روایت کے مطابق، اسماعیل نے ٹھوکر مارا آب زمزم دوسری روایت کے مطابق، بہرحال جبرائیل بھی مخلوق ہے اور مصطفیٰ کے غلام ہے، اسماعیل بھی نبیوں کے نبی ہے، یعنی امام الانبیاء تو آپ کے آقا ہے نا، سارے نبیوں میں اعلیٰ، تو مصطفیٰ سے کوئی افضل